Hello everyone, welcome. And this presentation is all about conduction of nerve impulse. In this presentation, you will study what is the nerve impulse basically, and how it generates and how it conducts. Right. So before starting all the explanation, we it is necessary to know the points that we're gonna cover here in this presentation. Firstly, we will study here about this one. The first one thing is resting membrane potential of axon. Now you all know that this one, if you call this one is cyton, then this is the axon, right? So axon have a membrane. Every axon have a membrane that is called axolemma. And when I'm talking about resting membrane potential, I am talking about the potential of this membrane only. This axon, or we can say it axolemma's resting membrane potential, right? Then after we gonna cover about maintenance of resting potential. Okay, so it is maintained by sodium potassium pump, that is called sodium potassium ATPase. Okay, this one is the enzymatic protein that is entangled inside the membrane, the axon membrane. Then active membrane potential, that is also called a nerve impulse. Then creation of nerve impulse, that means how the active membrane potential is created. Okay, then hyperpolarization and repolarization. Next slide. Here's the diagram showing channels. Firstly you should know that what are the channels. If you call if sorry if I'll draw the diagram and if I'll call it the axolemma, then here are certain channels. Okay, in every axolemma or in every cell, okay, there are certain channels. These are called sodium channels and some are potassium channels, right? Sodium channels and potassium channels. As the name indicates, sodium channel is responsible for the diffusion of sodium ions and potassium channels are responsible for the diffusion of potassium ions. So in every case, in every time, exolemma or exoplasm, here if I'm saying exoplasm, that mean I am saying about the cytoplasm of axon, and tissue fluid, that means the outside fluid of axon, right? So every axon have the tendency to take Na ions from outside and diffuse the potassium ion from its side to the outside, right? बट क्योंकि क्या होता है कि जो जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हर एक जो एक्सॉन है उसका जो सोडियम आयन्स होता है दे आर क्वाइट क्लोज, ये बिल्कुल क्लोज रहते हैं, और पोटेशियम चैनल्स जो होते हैं खुले हुए रहते हैं. ध्यान से सुनना मेरी बात को. एंड इफ़ यू पीपल वांट टू मेक सम नोट्स, पुट योर pen and paper and write down the things that I'm telling you here one by one. Okay, then after you should connect them out to make a proper note. तो क्या होता है कि Na के चैनल्स तो बंद हैं लेकिन पोटेशियम के खुले हैं. हालांकि पोटेशियम की टेंडेंसी होती है अंदर आने की डिफ्यूजन ग्रेडियंट की वजह से. जैसे कि हमको पता है कि डिफ्यूजन ग्रेडियंट क्या रहता है, ज़्यादा से कम की ओर, और यही चीज़ है. तो ज़्यादा Na का सोल्यूशन बाहर ज़्यादा रहता है, NaCl का सोल्यूशन बाहर ज़्यादा रहता है. बाहर का मतलब मैं हमेशा जब भी बोलूँ दैट मीन टिश्यू फ्लूइड में हमेशा NaCl ज़्यादा रहता है, और यहाँ एक्जोप्लाज्म में पोटेशियम, प्रोटीन्स, कुछ कार्बोनेट आयंस, और कुछ क्या होता है PO4 आयंस, फॉस्फेट आयंस ज़्यादा रहता है. तो पोटेशियम के आयंस को बाहर जाने की टेंडेंसी रहती है हमेशा, कैल्शियम के आयंस को अंदर आने की टेंडेंसी रहती है. लेकिन क्या होता है, इसको दोबारा से ड्रॉ करना पड़ेगा. लेकिन क्या होता है कि ये जो चैनल्स होते हैं अमूमन रेस्टिंग के टाइम पे, जब हमको कोई भी चीज़ पिंच नहीं हुई है, हमें कहीं पे कोई बर्न का एहसास नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, जब हम खाली चुपचाप बैठे हुए हैं, तो उस समय क्या होता है कि जो चैनल्स हैं, ये सोडियम के चैनल जो हैं ये ब्लॉक रहते हैं, ठीक, और ये पोटेशियम के चैनल्स खुले हुए रहते हैं. तो क्या होता है
कि सोडियम तो बाहर जा नहीं सकता, सॉरी सोडियम बाहर से अंदर आ नहीं सकता, लेकिन पोटेशियम सोडियम बाहर से अंदर आने की टेंडेंसी होती है उसकी, लेकिन ये आ ही नहीं पाता क्योंकि इसके चैनल्स बंद है। अब जो एक पोटेशियम है ये अंदर से बाहर जा सकता है, इसकी टेंडेंसी भी होती है और ये जा भी सकता है, बिकॉज ऑल द पोटेशियम चैनल्स इन एक्सोलेमा आर ओपन, राइट। तो ये तो हो गया हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये जो चीज़ है ना, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाली मैं आपको बता रही हूँ। तो ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये इनकी सोडियम इनकी चैनल्स की वजह से तो होता है, लेकिन इसको मेंटेन करने का जो सारा जिम्मेदारी होती है वो होती है सोडियम पोटेशियम पंप की। अगर मैं यहाँ पे एक और चैनल इस तरह से बना दूँ, इसको हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपेज, सोडियम पोटेशियम एटीपेज, ठीक है। ये एटीपेज क्या होता है, ये जहाँ पे एज लग जाता है इसका मतलब क्या है, वो एंजाइम है। तो ये एक एंजाइमेटिक प्रोटीन होता है जो कि हमेशा मेम्ब्रेन में अटैच रहता है एंड इट हैज़ द वर्क टू मेंटेन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द एक्सॉन, राइट। अब ये क्या करता है, इसका काम ये होता है, जैसे मान लो ये चैनल हमने बना दिया, ये पंप हमने बना दिया, तो इसका काम क्या होता है कि एक बार में ये सोडियम के 3 आयंस को बाहर भेजेगा, ठीक है, 3 Na आयंस हो गए, सोडियम के 3 आयंस को बाहर भेजेगा और पोटेशियम के 2 आयंस को अंदर आने देगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो मतलब ये जो ग्रेडियंट है सोडियम का बाहर ज़्यादा और पोटेशियम का अंदर कम, अंदर मतलब पोटेशियम अंदर ज़्यादा रहते हैं एक्सॉन के और सोडियम बाहर ज़्यादा रहते हैं एक्सॉन के, ये इस ग्रेडियंट को मेंटेन करके रखता है, डिफ्यूजन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करता है, ये हमेशा याद रखना। और ये जो चैनल्स होते हैं ये पैसिवली काम करते हैं, मतलब इनको कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इसको एनर्जी की ज़रूरत है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज को एनर्जी की ज़रूरत है। ये क्या करता है, क्योंकि एटीपेज है ये एटीपी की बहुत ज़्यादा एनर्जी लेता है और डिफ्यूजन ग्रेडियंट के अगेंस्ट इट डिफ्लक्स द 3 Na positive ions to outside and influx 2 potassium ions inside, right। तो ये है हमारा क्या, एक्टिव, सॉरी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में इतनी चीज़ें तो हमने बता दी। अब आपको पता है कि Na आयंस बाहर की तरफ ज़्यादा हैं, दैट मीन प्लस 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 प्लस, हेयर इज़ द मेजॉरिटी ऑफ प्लसेस, एंड बिकॉज कि यहाँ पे पोटेशियम आयन हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है, पोटेशियम आयन भी ज़्यादा नहीं है, पोटेशियम आयन से ज़्यादा यहाँ पे माइनस जो आयंस होते हैं वो जैसे जैसे कि फॉस्फेट के हो गए और कुछ प्रोटीन्स हो गई और कुछ कार्बोनिक आयंस हो गए, वो ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर को माइनस आयन, माइनस जो चार्जेस होते हैं वो ज़्यादा रहता है। अगर हम इसको इस तरह से ड्रॉ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, ठीक है। ये इनसाइड है, ये आउटसाइड है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो चीज़ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि प्लस वाले आयंस बाहर की तरफ इतने सारे हैं एंड ऑल द नेगेटिव मेजॉरिटी ऑफ नेगेटिव आयंस आर इनसाइड द एक्सोलेमा। तो ये क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट जनरेट कर देता है और इसमें क्या होता है कि जो अंदर की तरफ -70 MV का वोल्टेज जनरेट कर देता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बाहर को देखो प्लस चार्जेस हैं, अंदर की तरफ माइनस चार्जेस हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट हो जाती है। इसी को हम एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। और यही एनर्जी, इसी एनर्जी को थोड़ा सा चेंज हो जाती है जब ये एनर्जी, तो जब इसकी कंडीशन, इस एक्सोलेमा की कंडीशन व्हेनेवर इट गेट स्लाइटली चेंज with any of the any of the stimulus, or this one, this energy, this plus minus energy, this electric energy is used as the active membrane potential. Okay, active membrane potential is nothing like some kind of different thing, but it's derived from the what, uh, resting membrane potential, right। चलिए आगे देखते हैं। ये वही है कि ये सोडियम के आयंस अंदर नहीं जा पा रहे हैं, जो ये पिक्चर की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। और जब यहाँ पे एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल जाएगा तो अंदर चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग। ये देखिए जो मैंने आपको 70 MV वाला ये चीज़ें बताई थी, दिस डायग्राम रिप्रेजेंट्स द व्हाट
ये प्रेजेंट कर रहा है आपका resting membrane potential, and this one is what this one is potassium channel, this one is sodium channel, and potassium channel is partially open, and Na channel is closely, पूरी तरह से अच्छी तरह से क्लोज है। कौन से टाइम पे? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के टाइम में। दिस वन इज द सोडियम पोटेंशियम एटीपीज, और वी कैन से इट सोडियम पोटेंशियम पंप। और इसकी वजह से देखिए इस तरह से जो है ये जनरेट हो रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव आयंस की ज़्यादा पॉजिटिव आयंस है, यहाँ पे भी पॉजिटिव आयंस ज़्यादा है, लेकिन नेगेटिविटी यहाँ पे ज़्यादा रहेगी बिकॉज ऑफ अदर आयंस, अदर नेगेटिव आयंस अंदर की तरफ ज़्यादा रहेंगे। पोटेशियम यहाँ पे तो पोटेशियम आयन भी रहेंगे थोड़े, और यहाँ पे सोडियम आयंस भी ज़्यादा रहते हैं, इस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं। तो अगर यहाँ पे 1 मिली वोल्ट लगा दिया जाता है, सॉरी एक ये वोल्टामीटर लगा दिया जाता है, तो यहाँ पे -70 MV का जो है वोल्टेज यहाँ पे हम आराम से इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो चीज़ मैं बता रही हूँ ये सिर्फ न्यूरॉन्स में नहीं होता, इट डजंट हैपन ओनली इन न्यूरॉन्स, इट हैपन्स इन एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी। बट द डिफरेंस इज दैट दिस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज, ये क्या होता है, ये non digestible in other cells, but in muscle cells and in nerve cells it is reversible. ओके, मसल सेल्स में और नर्व सेल्स में ये रिवर्सिबल होता है, वो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में बदला जा सकता है और बदलता है। और वह कैसे बदलता है हम देखते हैं आगे। देखो अब क्या होगा, अब ये आ गया हमारा एक्टिव पोटेंशियल। ठीक है, इसको समझने से पहले कुछ सुन लीजिए ज़रा। जैसे ही देखो आपको पता है कि एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या होता है, बाहर प्लस 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 आयंस है, अंदर माइनस 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 आयंस है। इनका जो वोल्टेज है वो क्या है, -70 MV, मिली वोल्ट। ठीक, अब क्या होता है कि मान लो जैसे ही यहाँ पे इसको कोई स्टिमुलस मिलता है, यहाँ पे इस इतनी जगह पे इसको कोई स्टिमुलस मिल गया नर्व को, तो ये स्टिमुलस की वजह से क्या होता है कि इसका जो चैनल्स होते हैं, जो सोडियम पोटेशियम, मैंने चैनल बोले, सोडियम पोटेशियम के अलग अलग जो चैनल्स होते हैं वो बिल्कुल अपने काम को उनका उल्टा हो जाता है। जैसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में था कि सोडियम बंद रहता है और पोटेशियम ओपन रहता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोडियम खुल जाएगा, सोडियम का चैनल बिल्कुल खुल जाता है और पोटेशियम का चैनल बिल्कुल बंद हो जाता है। ठीक है, पोटेशियम का चैनल बिल्कुल बंद आ जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, सोडियम, लॉट ऑफ सोडियम आयंस गेट इनसाइड द एक्सोलेमा, एंड जो पोटेशियम आयन है वो अंदर से बाहर की तरफ दे आर रेस्ट्रिक्टेड, ये बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, बाहर जाने के लिए बिल्कुल इनको मना हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि इसकी वजह से धीरे धीरे जो -70 MV का वोल्टेज है वो -50 में पहुंच जाता है। ठीक, ये याद रखना, make a note, as the -70 millivolt voltage converts into -50 millivolt because of the immense influx of Na positive ions because of the impulse stimulus, not impulse, nerve stimulus. What happens, all the sodium ion channels get ये बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं। पहले तो ये पार्शली खुलते हैं, जैसे ये 50 मिली वोल्ट में पहुंच जाता है तो ये आयंस, ये जो चैनल्स होते हैं ये पूरे खुल जाते हैं, अच्छे से खुल जाते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है कि सोडियम के चैनल जो हैं, सोडियम के जो आयंस हैं वो बहुत ज़्यादा अंदर, बहुत ज़्यादा अंदर आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि एक्सोलेमा के अंदर देयर इज़ a lot of positive ions are there। इसकी वजह से क्या होता है कि जो पहले जो -70 MV का क्या था, जो वोल्टेज था वो क्या हो जाता है, +35 में बदल जाता है। What happening? वो क्या होता है +35 में, +35 में पहुंच जाता है। ठीक है, आप खुद ही सोचो, -70 MV, पहले -70 MV था, देन आफ्टर इनफ्लक्स ऑफ Na positive ions, just because of that -70 MV get converts into -50 MV, and as the -70 MV get converts into -50 MV, all the channels of sodium ion get
opened abruptly and immense of बहुत ज़्यादा जो होते हैं सोडियम आयंस वो अंदर आने लगते हैं, और उसकी वजह से सोडियम आयन के अंदर, क्योंकि वो पॉजिटिव आयंस होते हैं, तो उनके अंदर आने की वजह से जो क्या होता है, जो वोल्टेज होता है वो 35 में बदल जाता है, -70 का वोल्टेज 35 में बदल जाता है। ठीक है, तो ये 35 में बदलने की वजह से क्या होता है, अब जो पूरा का पूरा वो था, जो जो आयंस का डिस्ट्रीब्यूशन था पूरा ही बदल जाता है, मतलब बाहर हो जाती है नेगेटिविटी और अंदर आ जाता है पॉजिटिविटी, और इसी को हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड द एक्शन पोटेंशियल, या फिर इसको हम कहते हैं नर्व इम्पल्स। ठीक हो गया, यहाँ से नर्व इम्पल्स स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब फिर यहाँ से नर्व इम्पल्स आगे की तरफ बढ़ेंगे, अब हमको एहसास होने लगेगा कि कुछ हुआ है टाइप, हमारे पैर में कुछ चुभा है या फिर कुछ भी। इसके बाद हमने पढ़ना था हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन में क्या होता है कि ये जो नर्व इम्पल्स होती, जो ये नेगेटिव पॉजिटिव आयंस जो अंदर की तरफ आने होते हैं सोडियम के, वो इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आयंस आ जाते हैं, यानी कि 35 से +35 से लेके +40 तक के, तो इतने ज़्यादा जो ये आ जाते हैं आयंस, इसी को हम हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं। हाइपर पोलराइजेशन के बाद आपको पढ़ना है रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन में क्या होता है कि जो ये जो डीपोलराइजेशन हुआ, फिर हाइपर पोलराइजेशन हुआ, फिर नर्व इम्पल्स आई, नर्व इम्पल्स बनी, ये सब जो चीज़ें होती हैं ये 1 से 2 सेकंड के लिए ही होती हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो पाती। अब जैसे ही इतना ज़्यादा जब इसके अंदर पॉजिटिवनेस आ जाती है और यहाँ नेगेटिविटी हो जाती है, तो क्या होता है, फिर से जो है हमारे चैनल्स फिर से रिवर्स हो जाते हैं। यानी कि पहले क्या हुआ था कि जब स्टिमुलस मिला था तो सोडियम खुल गए थे, पोटेशियम बंद हो गए थे। अब ये कुछ ज़्यादा ही इसको स्टिमुलस मिल गया, मतलब कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव आयन अंदर आ चुके हैं, तो अब फिर से क्या होगा, फिर से जो चैनल्स हैं वो सोडियम के लिए ब्लॉक हो जाएंगे और पोटेशियम के लिए खुल जाएंगे, यानी कि पोटेशियम आराम से बाहर जा सकता है और सोडियम बाहर से अंदर नहीं आ सकता। प्लस इसके साथ साथ क्या होता है, यहाँ पे सोडियम पोटेशियम एटीपेज होता है, जो कि उसका काम है मेंटेन करने का, वो मेंटेन कर लेता है। तो 1 से 2 सेकंड के अंदर फिर से जो है चीज़ें फिर से अपनी पहली पुरानी वाली कंडीशन में आ जाती हैं, और इस टाइम पे जब ये सब कुछ हो रहा होता है तो वहाँ पे दोबारा से नर्व इम्पल्स, यानी कि दोबारा से आप जब स्टिमुलस किसी को उस नर्व को दोगे तो उसमें फिर से जो है फिर से ये जो चैनल्स हैं वो उसमें फिर चेंजेस नहीं आएंगे। एक्शन पोटेंशियल जब 1 से 2 सेकंड का रहता है, जब वो ख़त्म हो जाता है उसके बाद ही उसमें दोबारा, जब वो एक्शन पोटेंशियल ख़त्म होगा वो रेस्टिंग में आएगा, उसके बाद ही उसमें कोई दोबारा स्टिमुलस उसमें काम कर पाएगा। 1 से 2 सेकंड, उस 1 से 2 सेकंड के बीच में नहीं कर सकता। ठीक है, तो यही है हमारा रीपोलराइजेशन। ओके, तो ये तो हो गया हमारा जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। ओके, एक और डायग्राम है, ये आपको ज़्यादा इजी रहेगा। देखो इस डायग्राम में क्या है, दिस डायग्राम एक्सप्लेन्स अबाउट दिस वन, दिस डायग्राम एक्सप्लेन्स अबाउट द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, resting membrane potential you better know now. In resting membrane potential the exolemma have positive charges on outside and negative charges on inside. Then after, as the stimulus it takes any stimulus, then after sodium gets started opening and Na enter into the axon के अंदर Na जाने लगा। अब जैसे ही एक्सॉन के अंदर जाने लगेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ से देखो पॉजिटिव अंदर की तरफ पॉजिटिविटी बढ़ना स्टार्ट हो गई है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, रेस्टिंग पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल बिल्कुल एक दूसरे के अलग अलग होते हैं। इसके बाद क्या होता है, जैसे एक्शन पोटेंशियल 1 से 2 सेकंड तक रहेगा और उसके बाद ये फिर से अपने अपने काम में फिर से लौट जाएगा, यानी कि फिर से जो है आपके जो चैनल्स होते हैं वो फिर से ब्लॉक हो जाएंगे सोडियम के लिए। सोडियम बाहर से अंदर आना बंद हो जाएगा, पोटेशियम अंदर से बाहर जाना स्टार्ट हो जाएगा, और सोडियम पोटेशियम एटीपीज भी अपना काम करने लगेगा। तो उस वजह से फिर से जैसे पहले जैसे पैटर्न था पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का, जैसे ये पहले था वैसे फिर से बन जाएगा लास्ट में। तो इसको हमने क्या इसको हमने बोला रीपोलराइजेशन। ठीक है, और ये जो ग्राफ है
that one. I think this diagram is the complete diagram. Okay, whenever you will make your notes, add this. ठीक है, ये इसको आप इसको डालिए और ये आपको बहुत हेल्प करेगा. और ये जो ग्राफ है देखो, ये क्या है, -70 MV. इसको थोड़ा जूम करते हैं. This one is showing -70 MV. As I said to you that -70 MV is the potential is volt millivolt when the nerve is in resting membrane potential. When it converts into 50, that means now the nerve is the that means the nerve is now um, ready to open all the NA channels, right? Then after the peak one is a एक्शन पोटेंशियल मीन्स इसमें बहुत सारे एन जो है अंदर आ चुके हैं और जो पैटर्न है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का वो बिल्कुल क्या हो चुका है, बिल्कुल चेंज हो चुका है. उसके बाद ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, ठीक है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल वही वाला मेरे को बताया था 35 to 40 वाला. एंड देन आफ्टर फिर क्या होएगा आपका, ये है जो रेस्टिंग पोटेंशियल, यहाँ पे फिर से रेस्टिंग पोटेंशियल आ जाएगा. ठीक है, यानी कि एक्शन पोटेंशियल. उसके बाद क्या आएगा कि अंदर की तरफ जो स्टिमुलस मिला था उसकी वजह से चेंजेस आएंगे, उसकी वजह से फिर एक्शन पोटेंशियल आ जाए. एक्शन पोटेंशियल में 1 से 2 सेकंड तक आपकी नर्व रहेगी. देन आफ्टर वो फिर से क्या आ जाएगी, रेस्टिंग पोटेंशियल में आ जाएगी. So that was all about the generation of nerve impulse. In next class we will study about the conduction of nerve impulse, right? Okay then, thank you.